चेक चेक। बच्चों अब आवाज आ रही है? नाउ नाउ वेरी गुड। हा। तो गाइज यस, तो एज यू ऑल नो आईसीएसई ने एक स्पेसिमेन पेपर निकाला है विच इज शोइंग 2021 में पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो जैसे ही पेपर निकाला हमने कहा कि हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने देखा पेपर, क्वेश्चन पेपर देखा? कितने बच्चों ने क्वेश्चन पेपर देखा? हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू सॉ द क्वेश्चन पेपर? यस, रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू सॉ द क्वेश्चन पेपर? हाथ खड़े करो, किसने नहीं देखा? चलो, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। डोंट वरी, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेंटी। देयर वर 38 क्वेश्चंस, 38 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आई गेस उसमें गलत था, गलत इन द सेंस उसका ऑप्शन थोड़ा अलग थे, तो आई हैव स्किप्ड दैट। तो टोटली वी आर गोना डू 37 क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन। ठीक है बेटा, तो इट इज गोना बी अ लॉन्ग सेशन। जल्दी से ज्वाइन द मेंटी। द कोड इज 56724956। दिस इज द मेंटी कोड, कम ऑन जल्दी से ज्वाइन कर लो। इट इज term 1 based and I have solved the questions for you. I'll explain you also. Yes beta, CBSE people can also join, attempt. These are very good questions. I loved the questions. Yes, okay बच्चों। yes बेटा, CBSE का भी आ जाएगा ऑब्वियसली, ICSE का आ गया तो CBSE वालों का भी आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 is for 15 marks. Name the following by choosing the correct option. Question number 1, इसमें 5 parts थे। Yes, question number 1 में 5 parts थे। We have to name, yes, we have to choose the correct option out of the following. Come on guys, जल्दी से join कर लो। Go to www.menti.com, put the code 56724956. Yes. Everyone like the video and subscribe to the channel. Yes beta, we will be starting plant physiology. हाँ जी, ready? Join कर लिया? 100 होते ही मैं start कर दूंगा। Very good. तो here's the first question guys. A pair of corresponding chromosomes of the same shape and size but one from each parent is autosome, sex chromosome, homologous chromosome or analogous chromosome. A, B, C, D. A pair of corresponding chromosomes of the same shape and size but one from each parent. What's the answer for this guys? Come on, 3, 2, 1. Very good. Exactly. Amazing. The answer is homologous chromosome बेटा। देखो homologous chromosome क्या होते हैं? They are of the same size. They are the same size and they have same allele at the same location. Also, one you get from your father, other one you get from your mother. है ना? Homologous chromosome. ठीक है? तो बच्चों इसमें जिंदगी तबाह हो गई है। If you get below 50%, it is a जिंदगी तबाह करने वाला सवाल. If you get 50 to 75, it is a lull and top or a OP question. If you get more than 75, we will call it as a halwa question. But it's a zindagi tabah karne wala question. Did you get this question, guys? समझ आ गया ना इसका question? Yes, answer is homologous chromosome. Next one, question number 2 of 37. The factor that does not affect the rate of transpiration. Which does not affect the rate of transpiration? Intensity of light, A. B. Velocity of wind. C. Carbon dioxide. D. Oxygen. Which one does not affect rate of transpiration? Transpiration क्या होता है? Loss of water from the surface of the leaves. Come on guys. एग्जैक्टली बेटा, ऑक्सीजन। देखो लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज्यादा होगा, विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जो वाटर आ रहा है वो बार बार हटता जाएगा, तो देयर विल बी लेस वाटर मॉलिक्यूल, तो देयर विल बी मोर ट्रांसपिरेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि द स्टोमेटा हैज टू ओपन, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाए, और जैसे ही स्टोमेटा खुलेगा पानी निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन इज द आंसर। ऑक्सीजन की वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ठीक है, बाकी सबकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस from their higher concentration to lower concentration when they are in direct contact. Diffusion A, B endosmosis, C imbibition, and D active transport. Come on. Yes guys. Movement of molecule of a substance. Exactly guys, it is diffusion, है ना? Diffusion क्या है बेटा? Solid, liquid और gas, anything can move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। Question number 4. The complex molecule consisting of a DNA strand and a core of histone is सेंट्रोसोम, बी न्यूक्लियोटाइड, सी न्यूक्लियोसोम और डी क्रोमोसोम। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग डीएनए एंड कोर ऑफ हिस्टोन, उसको क्या कहेंगे? बहुत ही आसान सवाल है, ये मैंने कराया हुआ है। कम ऑन गाइस, एवरीवन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बेटा इफ यू आर न्यू। कम ऑन, ट्राई। आईसीएसई वाले बच्चे कहते हैं हमारे लिए कुछ करते नहीं हो। बेटा देखो, तुम्हारे सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर कराया बेटा द आंसर इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए लिपटा हुआ होता है, वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोसोम, है ना? इट्स सच एन इजी आंसर। ओके ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, देन वी विल सी द लीडर बोर्ड। The solvent used to dissolve chlorophyll pigment while testing a leaf for starch is soda lime, carbolic acid, methylated spirit और water। हम क्या चीज यूज करते हैं क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के लिए जब हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ टेस्ट करते हैं? बताओ। एग्जैक्टली गाइस, हम मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज करते हैं, अल्कोहल को यूज करते हैं ताकि क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाए और जो कलर है वो हमें अच्छी तरीके से दिखे, है ना बेटा? वी यूज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट, जिससे कि क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाए जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। स्टार्च का टेस्ट किससे करते हैं? कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं हम स्टार्च टेस्ट के लिए? बताओ। वी यूज आयोडीन सोल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ऑरेंजिश ब्राउन होता है। अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब क्या है? हमारे सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है। इफ आयोडीन सॉल्यूशन व्हिच इज ऑरेंजिश टर्न्स ब्लू ब्लैक, इट मींस इट हैज स्टार्च। वेरी गुड बेटा। स्वयं, वसुधा, आरिफा, बोर्ड्स आर नियर। अयो बेटा, बोर्ड शुड बी अयो, यू गाइज आर नियर टू द बोर्ड्स, ठीक है? तो बोर्ड्स को आपसे डरना चाहिए। हार्ट स्ट्रॉम, भूमि अग्रवाल, माइटोकॉन्ड्रिया, अदिति, वंशिका, कैस्पर, सिम्बा, ग्रेट जॉब बेटा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर गुड राइट? यस और नो? कम ऑन। क्वेश्चन ऑफ गुड राइट, क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर ईच ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 6। During meiosis, dash daughter cells are produced. During meiosis, how many daughter cells are produced? Yes बेटा बताओ। बेटा meiosis है।
एग्जैक्टली गाइस, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मियोसिस, है ना। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस में, माइटोसिस में सेम रहता है। वुडन डोर्स स्वेल अप ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू ए ऑस्मोसिस, बी डिफ्यूजन, सी इम्बिबिशन, डी ट्रांसपिरेशन। जो वुडन डोर्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। व्हाई गाइज? अगर आप नए हो तो लाइक करो हमारी वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कम ऑन। एग्जैक्टली गाइस, 57% लोगों ने सही जवाब दिया है। यस गाइस, इम्बिबिशन, है ना। वुडन डोर स्वेल कर जाते हैं क्योंकि वहां पे पानी, इम्बिबिशन क्या होता है? सरफेस अट्रैक्शन ऑफ वाटर। इम्बिबिशन क्या होता है? इट्स अ सरफेस अट्रैक्शन, मतलब पानी सेल के अंदर नहीं जाता, वो सरफेस पे ही रहता है। इट इज स्टेज ऑन अ सरफेस, द वाटर स्टेज ऑन द सरफेस। आंसर इज इम्बिबिशन। यस, नेक्स्ट वन, the semi-permeable membrane in a plant cell is the cell wall, B cell membrane, C tonoplast, D none of these. Which of them is a semi-permeable membrane in a plant cell? Plant cell में semi-permeable membrane कौन है? Come on. Guys, leaderboard will be there after every section. ये section 2 कर रहे हैं, section 2 के बाद हम leaderboard दिखाएंगे। Perfect. Exactly guys, the answer is, क्वेश्चन क्या था? भूल गया। Cell membrane, yes, semi-permeable. Which is the cell membrane? Cell membrane is a semi-permeable membrane both in plant cell as well as in animal cell. Plant cell में extra layer होती है cell wall की, which is freely permeable. बेटा देखो, plant cell में cell wall भी होता है, cell membrane भी होता है, और animal cell में only cell membrane is there. नवा क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। गटेशन इज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल्स, क्यूटिकल्स और हाइडाथोड्स। गटेशन क्या होता है? गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो कहां पे होता है? Yes guys, exactly it happens in the hydathodes. Hydathodes क्या होते हैं? जो लीफ के मार्जिन्स होते हैं वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको कहते हैं हम hydathodes। वहां से गटेशन होता है। गटेशन क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू पोर्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ, which are hydathodes. 10th question. A plant with variegated leaf is coleus, lotus, peepal, mango. Variegated मतलब बेटा multicolored leaf. Which of the following is a multicolored leaf? बच्चों like the video and subscribe to the channel everyone. एग्जैक्टली बेटा, कोलियस इज हैज अ वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, वो आपने घर पे देखा होगा, कलरफुल पत्ते होते हैं इसके, है ना। इसको घर पे भी लगाते हैं लोग, है ना। इट हैज अ वेरीगेटेड लीफ मतलब मल्टी कलर। व्हाई डू वी यूज मल्टी कलर लीफ? वी यूज इट इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको हम यूज करते हैं इन अ एक्सपेरिमेंट जिसमें शो करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल होता है। स्वयं बेटा वेरी गुड जॉब। वसुधा, भूमि, वंशिका, तन्मय हाई फाइव बेटा। देवर्षि ग्रेट जॉब बेटा। आरिफा, अपराजिता, ड्रैगनाइट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेट जॉब बेटा। अगला सवाल करें। यस,
यस बच्चों, अगला सवाल करें, जल्दी बताओ सर करते हैं। डू लेट मी नो, करें। चलो ये रहा अगला सवाल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। दिस इज सेक्शन 3, ओ सॉरी सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 11, the pressure exerted by the cell contents on the cell wall is called as A. Turgor pressure, B. partial pressure, C. wall pressure, or D. osmotic pressure. The pressure exerted by the cell content on the cell wall is A. Turgor pressure, B. partial pressure, C. wall pressure, D. osmotic pressure. Come on. Exactly guys, the answer is Turgor pressure. Turgor pressure is the pressure put by the content of the cell on the walls of the content of the cells on the walls of the cell. And a very good answer is Turgor pressure. Next one. The cell component visible only during the cell division is A. chromosome, B. chromoplast, C. chromatin, D. centriole. The visible only during the cell division. Which one is visible only during the cell division? Come on guys. Exactly. बेटा क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमोसोम विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, marine fish when placed under tap water burst because of endosmosis, A, B exosmosis, C diffusion, D plasmolysis। मरीन फिश मतलब वो वाली फिश जो ओशन में पाई जाती हैं। ग्रेट जो बेटा, एग्जैक्टली द आंसर इज एंडोस्मोसिस। क्योंकि देखो बेटा जो मरीन फिश होते हैं ना उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है ताकि वो ओशन के वाटर को बैलेंस कर पाए। बट प्लेन वाटर, टैप वाटर में देयर इज लेस वाटर, सो फिश हैज लॉट्स ऑफ वाटर सॉल्ट। तो द वाटर फ्रॉम द टैप, मतलब जो टैप वाटर होता है, इट गोस इनसाइड द सेल्स ऑफ द फिश। क्योंकि सेल में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है तो इट बर्स्ट द सेल, है ना, एंड द फिश विल बर्स्ट ऑफ। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, A grana, B fret, C stroma, D stoma। The site of dark reaction is what? Exactly guys, answer is the stroma, है ना बेटा। थाइलाकॉइड या ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। स्टोमा बेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग को स्टोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा है ये, STROMA, स्ट्रोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। The alternative form of the same gene
occupying the same position on the homologous chromosome is A. chromatid, B. allele, C. autosome, D. centromere. The alternative forms of the same gene occupying the same position on homologous chromosomes are. Come on, guys. Come on, everyone. Try. Exactly, guys. The answer is B. Yes. अरे अच्छा सॉरी बच्चों क्वेश्चन क्या था? अरे यार स्ट्रोमा के बाद वाला क्वेश्चन क्या था? Yeah, allele. The alternative form of a gene is called as allele. Allele is an alternative form of a gene. ग्रेट है बेटा स्वयं, वसुधा, तन्मय, हाइफा बेटा, अपराजिता, माइटोकॉन्ड्रिया, भूमि, श्वेता, अदिति, वंशिका एंड सृष्टि। ग्रेट है बेटा। नेक्स्ट सेगमेंट करें? यस चलो, ये सेक्शन 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, 1 मार्क ईच। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। क्वेश्चन नंबर 16। Osmosis is a movement of water from their lower concentration to their higher concentration through a semi-permeable membrane. Option B, movement of solutes from their lower concentration to their higher concentration through a semi-permeable membrane. Option C, movement of water from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane. Option D, movement of water from their higher concentration to their lower concentration through a freely permeable membrane. Come on, guys. Come on. अबे क्या अगले साल तक चलेगा क्या ये सवाल? Yes, guys, the answer is C. एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर सी कैसे हो गया? Yes, the answer is C. Movement of water from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane. बेटा water move करता है, solute move नहीं करता, ठीक है? Osmosis में water move करता है through a semi-permeable membrane. Okay, and it moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Water अपनी जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से lower concentration की तरफ move करता है. Next one.
Photolysis. What is photolysis? Splitting of water molecules into hydrogen. अब यार ये क्या कर रखा है, 2 मिनट कर दिया क्या? अरे यार अमितवा. यस गाइस, क्वेश्चन क्या था? अरे यार थोड़ा आगे चला गया क्वेश्चन. तो फोटोलिसिस. ओके, जस्ट अ सेकेंड बेटा, इसको मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ इफ आई कैन. चलो कोई बात नहीं बेटा, ये तो क्वेश्चन हो गया खराब. चलो एनीवेज बेटा, फोटोलिसिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द ग्राना. ग्राना में होता है. फोटोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन द ग्राना. क्वेश्चन नंबर 18. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? द टू मेंबर्स of a pair of factors join during the formation of gametes. B, the two members of a pair of factors separate during the formation of gamete. C, the two chromosomes of a pair of factors separate during the formation of gametes. D, the two members of a pair of factors separate during the process of germination. बताओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? कम ऑन गाइस. एग्जैक्टली बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. बाकी ऑप्शंस चेक करो. द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स जॉइन ड्यूरिंग, जॉइन तो होते नहीं, सेपरेट होता है, तो वन ऑप्शन इज रॉन्ग. द टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. देखो इसमें डबल बार लिखा है, द टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. ये क्या है? टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स नहीं. Either should be factors is equal to gene or chromosome. ठीक है, तो this is also wrong. The two members of a pair of factors separate during the process of germination. The two members of pair of factors. मतलब this is a kind of a double statement है ना बेटा. The two members of a yes. Sorry, fourth statement में देखो germination है. Fourth statement germination, it is not formation of gametes. So yes, answer is obviously 2, right? Very good. Next one. Question number 19. Guttation. What is guttation? Loss of water in the form of water droplets from the surface of the leaf. Option B, the loss of water in the form of water droplets through the stomata. Option C, the loss of water in the form of water vapor along the leaf margin. Option D, the loss of water in the form of water droplets along the leaf margin. बताओ, देखो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है. इसमें बस छोटे छोटे से वेरिएशंस हैं. वेरी गुड. यस गाइस, आंसर इज डी. वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में लूज होता है. ऑप्शन सी वाज in the form of water vapor. No, guttation में the water is lost in the form of water droplet, not a water vapor. So answer is D, not C. C was water vapor. Option is D. ठीक है, सरफेस नहीं होता बेटा, मार्जिन्स पे होता है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन through a cell membrane without any expenditure of energy. Yes. Option B, passage of ions from its lower to higher concentration through a cell membrane without any expenditure of energy. Option C, passage of water from its lower to higher concentration
through a cell membrane using energy from the cell, passage of ions from its lower to higher concentration through a cell membrane using energy from the cell. Yes guys, the answer is option 4. Active transport क्या होता है? जिस ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आप एनर्जी को स्पेंड करते हो टू मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जनरली चीजें कहां मूव करती हैं? फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हम उल्टा जाते हैं, ऑलरेडी कम है वहां से उठा के हम हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे भेजते हैं. एंड जनरली इट इज डन फॉर द आयंस, नॉट वाटर. इसमें हम आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसमें क्या होता है बेटा? एनर्जी स्पेंड होती है. ठीक है, इसमें व्हाट इज स्पेंट? ATP is spent and generally done for ions. Next one. Great job beta Swayam, Shushti, Tanmay, high five beta Gautam, Arifa, great job beta. Don't advertise VPro between Menti. But if we do not advertise VPro, then Menti will not happen only. ठीक है? So everything comes at a price. Yeah. Why do you think here happens? Because we want you might not need VPro, but there are students who need VPro. Okay, you might not need VPro, but there are many students who join us है ना, watching our YouTube videos, so they need VPro. ठीक है, you are so just it is just a small price. Like we do such a hard work for you people. We made this presentation within like at 12 o'clock we had got this thing, and by evening we are making this presentation and helping you. And so you should be little what should I say, show gratitude thoda sa ki such we do such hard work for you people. And instead of complaining about, not complaining, actually what I'm trying to say is ki VPro is a good thing. Okay, you might not need it, don't worry, that is good. Matlab you might be good, you might be having good teachers, but some students do need VPro. Okay, so obviously we will have to we will definitely tell about Vedantu Pro. Okay बच्चे, तो that is there है ना. तो we love you all. So I believe you should also little bit, instead of complaining, appreciate it है ना, at least. Yeah, show some because it is really difficult, because we have worked so hard for this. Since morning we were solving questions, all the teachers, not only me, like me, you would have seen abhi Ankana ma'am ka session tha, then after that there is Anubha ma'am session, then there will be all the other teachers also going to take the sessions. Yes. So yeah, okay bachche, so yes, so yeah, I'm going to change your name Earth man. I hope you guys understand. Moving forward, next question. State the exact location of the following. We have to tell the location. Okay guys, we have to tell the location of the following. Let us see. Question number 21. Spindle fibers, where are they located? Between two centrioles, option B. Between two centrosomes, option C. Between chromatid and centromere, option D. Between two centromeres. Spindle fibers are found where? Between two centrioles, between two centrosomes, between chromatid and centromere, between two centromeres. Where? Beta, I live in your hearts. Anirudh is like, where do you live? I live in your heart. कैसा लगा मेरा जवाब? Yes. Exactly बेटा, they are found between the two centrioles. Centrioles क्या होते हैं? Centrosome बेटा, it's an organelle है ना? It divides into two centrioles and move towards the opposite pole, and spindle fibers arise from the two centrioles. Shaguna Singh is saying yes sir. है ना बेटा? I stay in your hearts. Again, OP question, yes बेटा. Question number 22, here it is. Root hair is extension of cortex, B extension of epithelium, C extension of epidermis, or D extension of endodermis. Root hair is extension of cortex, extension of epithelium, extension of epidermis, or extension of endodermis. Come on guys. बेटा CBSE वाले भी कर लो, सब कर लो, जीवन में सब कर लो.
Exactly, guys. The answer is C. Yes, root hair is an extension of the epidermis. रूट हेयर क्या एपिडर्मिस का एक्सटेंशन होता है ना. रूट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस. उससे एक्सटेंड होकर रूट हेयर निकलता है. वेरी गुड क्वेश्चन भाई, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस लगे मुझे तो बहुत मजा आया. स्टोमेटा more on the upper surface of dorsiventral leaf, more on the lower surface of dorsiventral leaf, both upper and lower surface of dorsiventral leaves, none of the above. Stomata is present more where? Come on guys, try. जीवन में इस क्वेश्चन को ट्राई करा जाए अरे उत्साह उल्लास के साथ. बेटा देखो, डॉर्सीवेंट्रल लीफ क्या होता है? ऐसा लीफ जो ऐसे पैरेलल होए. डॉर्सीवेंट्रल कौन सा लीफ होता है? जो पैरेलल टू दी सरफेस होता है. ठीक है. और जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होता है ना बेटा, उसके नीचे लोअर साइड पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं देन अपर साइड. क्यों बताओ? क्यों बताओ? लोअर साइड पे ज्यादा क्यों होते हैं? कौन बताना चाहेगा? कौन सा बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसका जवाब देना चाहता है? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा भूमिका अग्रवाल. टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. एग्जैक्टली, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट वन, thylakoids. A, inner membrane of the chloroplast. B, wall of the chloroplast. C, in the chlorophyll. D, in the stroma of the chloroplast. Thylakoids कहाँ पे होते हैं? In the inner membrane of the chloroplast, wall of the chloroplast, chlorophyll में होते हैं, stroma of the chloroplast. कहाँ होते हैं thylakoid? बताओ. प्लांट की जिंदगी में thylakoids कहाँ पाए जाते हैं? Exactly guys, they are found in the stroma. जिंदगी तबाह कर ली सबने यार. सेल थाइलाकोइड कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं ना. आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा है? उसमें बीच में थाइलाकोइड होते हैं, गोल गोल से बिस्किट की तरह, एक के ऊपर एक. उसको ग्रैना कहते हैं, है ना. बीच में होता है ना, स्ट्रोमा में होता है ना. यस, स्ट्रोमा में होता है. मेरे बच्चों, जिंदगी तबाह कर ली तुम लोगों ने फिर से. 25वां सवाल, palisade parenchyma is present between the upper and lower epidermis of the leaf of dicot leaf. Option B, between the upper and the spongy parenchyma of dicot leaf. Option C, between the lower epidermis and spongy parenchyma of dicot leaf. Option D, between the upper and lower epidermis of monocot leaves. Come on guys, क्या है इसका जवाब? Exactly beta, it is present between the, yes, upper and the lower. Yes, it is present between the upper and the epidermis and the, yes guys, spongy tissue. Palisade tissue कौन सा होता है? जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, उसको हम पैलिसेड टिश्यू कहते हैं. जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है. वो पहले क्यूटिकल होता है, फिर अपर एपिडर्मिस होता है, फिर पैलिसेड होता है, फिर उसके बाद स्पॉन्जी टिश्यू होता है, फिर लोअर एपिडर्मिस होता है एंड लोअर क्यूटिकल. ऐसा होता है. वेरी गुड सृष्टि गौतम फ्रॉम तमिलनाडु, आइलिस, अर्थमैन, आफिया, श्वेता, स्वयं, तन्मय, हाई फाइव बेटा, क्रिश एंड देवर्षि. ग्रेट जॉब भैया. ये पेपर तो बहुत ही बड़ा है. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन फॉर 5 मार्क्स. देयर विल बी 5 क्वेश्चंस. स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? इनके फंक्शन बताने हैं. ठीक है. सबसे पहला फंक्शन बताओ. What is the function of stroma? Site of photolysis of photosynthesis. Site of photochemical phase of photosynthesis. Option C, site of light dependent phase of photosynthesis. Option D, site of light independent phase of photosynthesis. What is stroma? बताओ.
एग्जैक्टली गाइस, द आंसर इज यस, साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शन होता है ना बेटा। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। थाइलाकॉइड में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। तो डार्क रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन द स्ट्रोमा। गुड क्वेश्चन है, मतलब मजा आ गया मुझे तो करके। गार्ड सेल्स ए रेगुलेट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बी रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सी रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, डी रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल्स क्या करते हैं जीवन में? यस, गार्ड सेल जीवन में क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, है ना। क्या करते हैं जीवन में गार्ड सेल अपने? यस बेटा, वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को कंट्रोल करते हैं। मैं तो थक गया भैया ये सवाल कर करके। बच्चों तुम्हारे क्या विचार है? व्हाट डू गाइस थिंक? हम थक गए सवाल कर करके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। Xylem, translocation of food from leaves to the other parts of the plant, conduction of water and food, conduction of water and minerals from the root to the other parts of the plant. Xylema Coca-Cola, guys did you तुमने गाना सुना Xylema Coca-Cola पिला दे? तो ये सुन के Xylem ने Xylem बेचारा परेशान हो गया। Xylem बोला मैं मार्स पे जा रहा हूँ इलॉन मस्क के साथ, मुझे अर्थ पे नहीं रहना, स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल नहीं रहना। उसने गाना सुना और वो भाग गया बेचारा Xylem। Xylem helps in conduction of water and minerals in the plant. Okay, Xylem helps in conduction of water and minerals in the plant. Question number 29. Chromosomes A are the carriers of heredity, B controlling center of the cell, C site for various chemical reactions, or D intracellular digestion. What are chromosomes? Come on guys. Exactly guys, chromosomes are the heredity carriers of heredity, है ना, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। 30वां सवाल, 30th क्वेश्चन। हाइडाथोड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, हेल्प्स इन गटेशन, हेल्प्स इन इम्बिबिशन, और हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। व्हाट डू द हाइडाथोड्स डू? कम ऑन गाइज। ठराई ठराई ठराई, everyone try. Exactly beta, they help in guttation. Yes, हाइड्राथोड helps in guttation, है ना बेटा। हाइड्राथोड मैंने बताया था मार्जिन पे जो पोर्स होते हैं। वेरी गुड बेटा। सृष्टि, गौतम, अर्थमैन, श्वेता, एलिस, तन्मय, क्रिश, आफिया, शोभित एंड एनी ड्रॉइड। ग्रेट जॉब बेटा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 7 सवाल हैं 10 मार्क्स के बेटा, ठीक है। लेट्स डू दिस। 31 given below is a diagram representing a stage in mitotic cell division. What state it is? Identify the stage. Telophase, B prophase, C metaphase, D anaphase. ये कौन सा फेज है? ध्यान से देखो डायग्राम को, बड़ा कर दूं?
हाँ बेटा, उज्जवल टोकस 9841 9814 उज्जवल टोकस यस एग्जैक्टली बेटा, इट इज अ प्रोफेज। व्हाई प्रोफेज? क्योंकि आप देखोगे क्रोमोसोम इंटैक्ट है ना, क्रोमोसोम तो इंटैक्ट है और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लगता है ना। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम सारे एक लाइन में आ जाते हैं। एनाफेज में स्प्लिट होकर दूसरे पोल में जाने लगते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनने लगता है ना। जिंदगी तबाह होते हुए। अगला सवाल, लेबल पार्ट मार्क्ड एज एक्स। व्हाट इज एक्स? ध्यान से देख लो, एक्स क्या है? सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड। क्या है एक्स? जालिमा कोका कोला पिला दे। Yes guys, the answer is X is सेंट्रोमियर बेटा, सेंट्रोमियर है ना। सेंट्रोजोम क्या होता है? वो ऑर्गेनल। सेंट्रोमियर क्या? सेंट्रोजोम क्या होता है? वो ऑर्गेनल जिसमें दो सिलेंडर होते हैं, उसको अलग अलग कलर तो सेंट्रियोल हो जाता है ना। सेंट्रोमियर क्या होता है? जो क्रोमोसोम को बीच में से होल्ड करके रखता है ना, जो दो क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। वेरी गुड सृष्टि बेटा, गौतम, अर्थमन, श्वेता, एलिस, तन्मय, कृष, आफिया, शोभित एंड एने। ग्रेट जॉब। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33। गिवन बिलो इज अ डायग्राम। अच्छा, नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर। इस स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है? इंटरफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। इस स्टेज के बाद कौन सा आता है? एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। बेटा ये मैंने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। दिस एंटायर चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया क्या? अरे यार बच्चों, उसका आंसर था, ये प्रोफेज है, उसके बाद मेटाफेज आएगा, है ना। द आंसर वाज मेटाफेज। आई गेस क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गया। क्वेश्चन वाज कि व्हाट विल कम आफ्टर दिस फेज। प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज आता है, तो आंसर वाज मेटाफेज। नेक्स्ट वन, 34। What is diploid number of chromosome shown in the diagram? इसका डाइप्लॉइड क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, माइटोसिस हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। इसका डाइप्लॉइड कितने क्रोमोसोम होंगे इस डायग्राम में, अगर वो डाइप्लॉइड होगा तो? 6, 2, 4, 8। What will be the diploid number? Come on. बेटा सीबीएसई 9 का टिश्यू कैंसिल नहीं करा बेटा, ये एक्चुअली आज ही रिलीज हुआ है ना, तो ये हमें पहले करना था, बिकॉज इट इज अ न्यू पैटर्न विच हैज बीन रिलीज्ड टुडे ओनली, तो हमने इसलिए इसको आज करा। एग्जैक्टली बेटा 4 रहेगा। 4 क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं, तो 4 ही रहेगा डाइप्लॉइड। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड, है ना, तो 4 ही रहेगा। द आंसर इज 4। ग्रेट जॉब। क्वेश्चन नंबर 35। Very good beta, I can see many of you are watching. Like the video and subscribe to the channel. Mention one important feature of this stage. इस stage का important feature क्या है? Nucleus reappears, nuclear membrane reappears, nuclear membrane disappears, और chromosome align on the equator. Mention the important feature of this stage. बताओ। एग्जैक्टली गाइस, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम दिखने लगते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लगता है। ग्रेट जो बेटा सृष्टि। ओ गौतम ऊपर आ गया। ग्रेट जो बेटा गौतम, सृष्टि, अर्थमैन, श्वेता, तन्मय, हाइफा बेटा, कृष, एनी, एलिस, रे, आफिया, ग्रेट, आरिफा। ग्रेट जो बेटा। Yes बेटा, I guess this one is second last question.
आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज दिस सेल ऑर्गेनल? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्या है ये सेल ऑर्गेनल? बेटा एक और क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। ए इज स्ट्रोमा, बी इज ग्रैना, सी इज थाइलाकॉइड। बट उसमें ना ऑप्शन थोड़े ऊपर सीधे थे तो इसलिए मैंने करा नहीं। एग्जैक्टली दिस इज द डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ये किसका डायग्राम है? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ग्रेट बेटा, गौतम, सृष्टि, अर्थमैन, श्वेता, तन्मय, क्रिश, एने, एलिस, रे एंड आरिफा। ग्रेट जॉब बेटा। लास्ट क्वेश्चन, एंड गाइस बिफोर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन, पहले बताओ मजा आ रहा है? डिड यू एंजॉय द सेशन? डिड यू एंजॉय सॉल्विंग क्वेश्चंस विद मी? टेल मी इन द चैट बॉक्स, बताओ। Yes, did you like the question? Did you enjoy solving? Very good, very good. Beta, this is the sample paper which is released by them, released by the ICSE board. And obviously your first term paper will be coming something like this only. है ना, आपका जो first term paper है इसी के basis पे आएगा, तो be prepared with this, okay? And yes, in case you need help, आपको लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई रही है, ठीक है, वेदांतु में वी हैव स्पेशल बैच फॉर क्लास 9th ICSE, सॉरी 10th ICSE, और हमारा NTSC का भी क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10th के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 6th of September, है ना। अब ये NTSC किसके लिए बेटा? देखो ICSE वाले बच्चे जितने भी होते हैं, यू हैव अ गुड कोर्स, मतलब हमें लगता है कि आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है और यू आर यू हैव मोर टू स्टडी, मतलब ICSE वाले बच्चे को ज़्यादा पता होता है एज कम्पेयर टू CBSE, क्योंकि CBSE का पोर्शन कम होता है, ICSE का पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड गाइज देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड एज NTSE, दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, ठीक है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? यस, ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं स्टेट वाइज, है ना, they get selected state wise and government of India provides them with scholarship for 6 years. For the first 2 years आपको scholarship मिलता है 1250 rupees का, and for the third year, sorry, मतलब from the college, since you start going to college, you get every month 2000 rupees from the government, which is very good. Apart from that, और क्या होता है? NTSE is a good platform guys, which adds to your resume. आप फ्यूचर में कभी भी आप फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, ठीक है, जॉब में जाते हो, तो NTSE स्कॉलर इज लाइक अ आइसिंग, मतलब वो कहते हैं कि हाँ यार ये तो स्मार्ट बच्चा है, इंडिया के टॉप के स्मार्ट बच्चों में से एक बच्चे बनते हो आप, समझ रहे हो। तो अगर आपका बेसिक कोर्स खत्म हो चुका है, इफ यू फेल्ट टुडेज क्विज वाज हलवा, आपको सारा आता था सवाल, तो गाइस दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर नॉर्मल स्टूडेंट जिनको बस पढ़ना है और करना है, उनके लिए नहीं है। NTSE क्रैश कोर्स इज फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें क्लास 9th का आता है, क्लास 10th का आता है, एंड बीइंग एन ICSE स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका सिलेबस ऑलरेडी वास्ट होता है, यू हैव मोर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एज कंपेयर टू अ CBSE स्टूडेंट, ठीक है। तो व्हाट हाउ वी आर हेल्पिंग यू, हमारा एक NTSE का क्रैश कोर्स चलता है, ठीक है बेटा। इसका जो पूरा NTSE का जो कोर्स होता है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सिलेबस, ओके, इट इज डिफरेंट। यू गेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, ऑल्सो एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट डू यू गेट इन दिस क्रैश कोर्स? यू गेट 2 to 3 months ऑफ कोचिंग फ्रॉम अस, जब तक एग्जाम नहीं होता, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। लाइव क्लासेस बाय टॉप NTSE टीचर्स, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, मास्टर क्लास, मतलब जो टॉपर्स हैं वो आके आपसे बात करेंगे, दे विल टेल यू देयर स्ट्रैटेजीज, रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली मिलेगा, 14 मॉक टेस्ट, यू विल गेट टू डू 14 टेस्ट ऑफ द NTSE पैटर्न, एंड अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, जस्ट क्लिक एंड यू विल गेट आप बस फोटो खींचो और डालो, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू चेक योरसेल्फ, आप चेक करना चाहते हो कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहां स्टैंड करते हो, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड इट। जो ये बच्चा IIT जाना चाहता है, जो बच्चा नीट क्लियर करना चाहता है, ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ देम गिव NTSE इफ यू वांट टू चेक कि आप इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड करते हो। हम लोग ना खुश हो जाते हैं अपने स्कूल में टॉप करके, आपको लगता है कि अरे वाह मैं तो अपने स्कूल का टॉप 3 में आता हूं, मैं तो अपने स्कूल की टॉपर हूं। बेटा इंडिया लेवल पे कंपीट करना चाहते हो ना, तो दिस इज द प्लेस,
ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जो भी बच्चे IIT क्लियर करते हैं, जो भी बच्चे नीट क्लियर करते हैं, दे स्टडी फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड दे स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज द वन, है ना। एंड वेदांतु पे हमारे रिजल्ट्स पता है, वी गॉट 139 स्टूडेंट सेलेक्टेड इन NTSE, ठीक है, 139 स्टूडेंट्स, तो दैट इज हाईएस्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो वी आर द बेस्ट हु प्रोवाइड दिस कोचिंग। Yes guys, the course fee is 5,000 rupees, but you can use the code ARPRO to get 10% off, that is you can say 500 जो भी बचता है यार, अच्छी बात है, मतलब obviously बच्चे कहेंगे 500 रुपए का तो डिस्काउंट है, बट एनीवेज बेटा 500 रुपीज इज ऑल्सो अ गुड डिस्काउंट, है ना, यूज इट, बिस्किट खा लेना ठीक है, बट इट्स अ वेरी गुड कोर्स, डू चेक इट आउट, यू कैन यूज द कोड ARPRO, get 500 rupees off, yes, you can use any of the methods. Okay, if you enjoyed studying with us, trust me guys, you should try Vedantu Pro. ये हमारे ऐप पे होती है classes, and trust me, thousands of students have enrolled for NTSE. Test yourself, come test yourself with us and let us help you, achieve your dreams. ठीक है बच्चों, चलो ना go. Ready for the last question? Ready for the last question guys? है ना बच्चे, अपने पेरेंट्स को दिखाना, अपने पेरेंट्स को बताना NTSE के बारे में, ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताना NTSE के बारे में, टेल देम अबाउट द कोर्स, स्टडी द सिलेबस, है ना, एंड डू ट्राई टू एनरोल फॉर द September 6 कोर्स, ठीक है। एक बार चेक करो, अपने पेरेंट्स को बताओ कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप NTSE के बारे में सर्च करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, यू विल गेट अ गुड आइडिया, ठीक है बच्चों। ट्रस्ट मी, लाइक आई वॉज ऑफ योर एज, आई डिड नॉट नो अबाउट NTSE, मुझे नहीं पता था, ठीक है। You know you have resources, we are there with you, Vedantu is there with you, so you should definitely make use of this opportunity. Okay, last question guys, here it is. Observe the diagram in the following answer. The unit of light absorbed by the chlorophyll is proton, photon, electron, neutron. बताओ यूनिट ऑफ लाइट के, ये तो फिजिक्स का था, बट एनीवेज आपको पता है, देखो एक और क्वेश्चन था, उसमें देवर आस्किंग व्हाट इज A, B एंड C, बट ऑप्शन थोड़े खराब थे, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ थी, तो इसलिए आई हैव नॉट टेकन दैट क्वेश्चन। A इज स्ट्रोमा, B इज ग्रेना एंड C इज थाइलाकोइड। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा अनूप सिंह। एग्जैक्टली गाइस, द आंसर इज फोटोन, है ना, फोटोन इज द एनर्जी यूनिट विच इज यूज्ड। एक बच्चा कह रहा है कि सर बिना कोर्स के NTSE का एग्जाम दे सकते हैं क्या बेटा? श्योर, डेफिनेटली यू कैन गिव, बट देखो NTSE में नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते, NTSE में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हॉट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टू क्रैक दैट यू विल डेफिनेटली नीड योर हेल्प। आप एक बार करो, ऐसा करो, NTSE का ना पिछले साल का पेपर उठा के देखना, वो सॉल्व करना। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो तो नो नीड फॉर अ कोर्स, बट अगर आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो रहा, आपको हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर द कोर्स। ओके, एंड कोर्स फीस इज 4,500, दैट शुड बी वेरी अफोर्डेबल, ठीक है, चेक कर लेना। क्लैप्स फॉर गौतम गाइस, एवरीवन, क्लैप्स फॉर गौतम फ्रॉम तमिलनाडु। वेल डन बेटा गौतम। Come on guys, claps for Gautam, well done बेटा, well done, great job। मुझे तो बहुत मजा आया गाइस। क्वेश्चन तो दिस इज टर्म 1 पैटर्न, है ना। एंड गाइस नेक्स्ट ऑन आवर चैनल वेदांतु 9th and 10th वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। ह्यूमन एनाटॉमी नहीं आ रही तो प्लांट फिजियोलॉजी आ रही है, तो वी विल बी डूइंग फिजियोलॉजी का क्वेश्चन, सॉरी प्लांट का, है ना। तो वी विल स्टार्ट विद प्लांट चैप्टर्स, डोंट वरी guys, subscribe to Vedantu 9th and 10th, we are gonna cover each and every chapter which is going to come in the exam, बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा वो कवर करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, दैट विल बी फॉर फ्री, टोटली फ्री एज वी डू, एंड डोंट वरी गाइज, वी टेक केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट, है ना। ऑब्वियसली वी टेल अबाउट वी प्रो बिकॉज सम स्टूडेंट्स माइट वांट सम एडिशनल हेल्प, तो उनके लिए है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए यूट्यूब पे हम पूरा पढ़ाते हैं, है ना। तो यस, यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो आई सी इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, हैव अ ग्रेट डे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। डू लेट मी नो वीडियो कैसा लगा आपको, है ना। विच वॉज द क्वेश्चन विच यू फेल्ट वॉज डिफिकल्ट, was the question easy, question paper easy, difficult or medium? Do let us know in the comment box. Okay. Thank you for joining, have a great day, bye bye, lots of love.